Good morning, everyone. How are you all? Sir, good morning. Good morning. What about you? I'm also fine. I'm also fine. Thank you, beta. Beta, in today's class, we have to read a new concept, that is the gerund. We have to start a new section from the chapter number 7. Chapter number 7 is hai? Yes, this is chapter number 7. Yes, sir. That is a grammar junction from your book, and where we would be studying about the gerund. So let me open the book first. किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज mute yourself, whoever is having the noise around their in surrounding. Number 1, please mute yourself, you are making lots of noise. Okay, in grammar junction today we have to study about a gerund. So what are gerunds? Before moving ahead, first of all I would like to explain you all that what are gerunds. So before my explanation, can anybody tell that what are gerunds? किसी को gerund के बारे में पता है? If anybody know, they can raise their hand. Okay, Shanika, I'll come, don't worry. Yes, Shanika, please tell about the gerund. Gerund. Sir, gerunds are those which make a noun, which can change a noun into a verb with the help of ing. Like painting is a verb which is also can present as a noun. Okay, good. Actually, the gerunds in simple we can say that it is a ing form of the verb. अच्छा, ing form of the verb को हम और भी किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं, पता है क्या है? Sir, continuous. Sir, continuous. No, it's not continuous. कहाँ से बोल रहे हो बेटा? What are these things? आप लोग को जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, कई लोग इस तरह पढ़ाते हैं, कई लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, कभी बताया गया है कि नहीं? इन क्लास 4 ऑलरेडी आई एम टीचिंग राइट नाउ टू द क्लास 4 स्टूडेंट्स, और 4th में आप वो बुक ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का नाम सुना है कभी? Yes, sir. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं? Sir, verb का first form. नो, इट्स रॉन्ग. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है. ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल. समझ में आया? डांस Yes, का sir. प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? डांसिंग. ईट का प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? ईटिंग. यानी जो वर्ब का ing फॉर्म है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. आज जो आपको पढ़ना है gerund के बारे में पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि जो वर्ब का ing फॉर्म हो वो gerund कहलाता है. वर्ब का ing फॉर्म वाला वही सेम वर्ड, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल जब आपका नाउन का काम करे, देन इट इज कॉल्ड gerund. तब वो gerund कहलाएगा, नहीं तो वो वर्ब कहलाएगा. ध्यान दीजिएगा. Yes, sir. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर वो वर्ब का काम करे तो दैट इज अ वर्ब. अगर वो नाउन का काम करे तो उसे gerund कहेंगे. आकांक्षा पांडे, आपका ध्यान कहीं इधर उधर है, आप इसीलिए आपको नहीं आता. कुछ पूछूंगा तो अभी बता नहीं पाओगी. अभी यही जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी में से पूछूंगा, बिल्कुल नहीं बता पाओगी 100%. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहने का मतलब वर्ब का ing फॉर्म, या तो वर्ब का ing फॉर्म बोले या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले. प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए मैं बोल रहा हूं जिससे आप सभी को प्रेजेंट पार्टिसिपल की भी नॉलेज हो जाए. दोबारा इनकेस प्रेजेंट पार्टिसिपल में बोलूं तो आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ किसकी बात में की जा रही है. Whenever a present participle are used as a noun in a sentence, तो वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ड है वही आपका gerund कहलाएगा. Whenever a word having ing form, whenever ing form of a verb is used as a noun, that is called a gerund. और जब कभी gerund किसी phrase के साथ, a phrase, a gerund phrase क्या होता है? A phrase
containing gerund is called a phrase gerund. आपके बुक से भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने का भी प्रयास करते हैं. The word weeping is actually a verb. There is a word weeping. Weeping is not allowed in my woods. Now here the sentence is weeping is not allowed in my woods. Weeping is in bold format, and Yes. that if we want to, if we observe, then we would be getting that ki weeping is not a action. Weeping is not a action words. Weeping has been not used as a verb. जो इस सेंटेंस में वीपिंग के बारे में बताया गया है, वीपिंग का काम हो रहा है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि वीपिंग का काम हो रहा है. यहाँ पे वीपिंग के बारे में बताया गया कि वीपिंग हमारे यहाँ पे नहीं अलाउ है. वीपिंग इज नॉट अलाउड इन माई वूड्स. वीपिंग जो है मेरे जंगल में नहीं अलाउ है. तो वीपिंग के बारे में बताया जा रहा है. ओके, इट्स नॉट, इट इज नॉट अ एक्टिंग एज अ मेन वर्ब. ये वर्ब की तरह नहीं काम कर रहा है. इट्स वर्किंग एज ए नाउन. इसके बारे में बताया जा रहा है. नहीं, वीपिंग एक तरीके से एक मतलब पर्टिकुलर, आप कहते हैं ना कि ये नहीं अलाउड है, कोई पर्सन नहीं अलाउड है, वीपिंग नहीं अलाउड है, तो दैट मीन्स कि वीपिंग हैज बीन यूज्ड एज ए नाउन. लुक इनटू योर बुक. द वर्ड वीपिंग इज एक्चुअली अ वर्ब. कहीं ना कहीं वीपिंग जो है वर्ब तो है ही. वीपिंग मीन्स जानते हैं क्या, पता है वीप मीन्स क्या होता है? अगर सिर्फ वीपिंग हम अकेले ऐसे लिख दें कि लेट्स से कि इफ आई राइट हियर वीप, मैं पूछूं वीप मीन्स क्या होता है, तो आप कहेंगे रोना. इफ आई आस्क यू ऑल दैट कि वेदर इट इज अ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, क्या है ये, तो आप क्या बोलेंगे इसको? This is a verb. दिस इज अ वर्ब. दिस इज अ एक्शन वर्ब. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. यू वुड बी टेलिंग दैट कि इट इज अ वर्ब. इट इज एक्शन वर्ड. दैट मीन्स कि इट इज अ verb. Whenever I write this one, weeping. Now, what is this? The verb. It is also a verb. It is a verb. It is. अगर ऐसे सिंगल वर्ड से अगर कोई पूछ ले कि weeping क्या है, नाउन है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं. लेकिन अगर आपको नॉलेज है और वो सामने वाला समझने वाला है, मान लीजिए क्लास फर्स्ट के बच्चे को आप बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा. लेकिन अगर कोई समझदार है, कोई जानने वाला है, आप उसको आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो कि whenever weeping, weeping तो वर्ब तो है ही, बेसिकली weeping इज अ वर्ब. लेकिन कहीं कहीं weeping को एज ए नाउन भी यूज कर. बेटा लैपटॉप डिस्चार्ज हो चुका है, जस्ट वेट फॉर अ सिंगल मिनट, जस्ट आई कनेक्ट सो दैट आई कैन कनेक्ट इट विद द चार्जर.